ٹنڈو العیار کے علاقے ٹنڈو آدم روڈ پر ٹرک اور لوڈر رکشے میں تصادم، حادثے کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق اور ایک زخمی ہو گیا۔ ٹرک ڈرائیور فرار ہونے میں کامیاب، اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیم موقع پر پہنچ گئی، نعش اور زخمی کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ساہیوال کے علاقے عنایت کالونی میں دوہرے قتل کی لرزہ خیز واردات، نامعلوم افراد نے گھر میں گھس کر 40 سالہ خاتون اور 15 سالہ بیٹے کو گلا گھونٹ کر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا، علاقے میں خوف و ہراس۔ شیخوپورہ اور نواحی علاقوں میں چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں میں اضافہ، مزاحمت پر ڈاکوں کی فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق اور ایک زخمی ہو گیا۔ جرائم کی بڑھتی ہوئی وارداتوں پر پولیس قابو پانے میں ناکام، شہری عدم تحفظ کا شکار ہونے لگے۔ سوابی میں جنرل سیکرٹری ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن صفدر زیب کے گھر ڈکیتی کی واردات، ڈاکو اہل خانہ کو یرغمال بنا کر گھر سے 24 تولے زیورات، 15 لاکھ روپے نقدی، موبائل فونز اور اسلحہ لے کر فرار، شہری سراپے احتجاج۔ اور منڈی بہاؤدین میں ڈی پی او انور سعید کی پریس کانفرنس، جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائی بارے آگاہ کیا، سنگین جرائم میں ملوث متعدد ملزمان کو گرفتار کر کے مقدمات درج کر لیے، گرفتار ملزمان سے مال مسروقہ بھی برآمد۔ السلام علیکم، کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں حسن روف۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا آغاز ایک شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ بلیٹن میں خوش آمدید۔ آپ کو بتائیں کہ ٹنڈو العیار کے علاقے ٹنڈو آدم روڈ پر ٹرک اور لوڈر رکشے میں تصادم، حادثے کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق اور ایک زخمی ہو گیا۔ ٹرک ڈرائیور فرار ہونے میں کامیاب، اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیم موقع پر پہنچ گئی، نعش اور زخمی کو تحصیل ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ساہیوال کے علاقے عنایت کالونی میں دوہرے قتل کی لرزہ خیز واردات، نامعلوم افراد نے گھر میں گھس کر 40 سالہ خاتون اور 15 سالہ بیٹے کو گلا گھونٹ کر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پولیس تحقیقات کے مطابق ملزمان ڈکیتی کی نیت سے گھر میں داخل ہوئے اور توڑ پھوڑ کی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ شیخوپورہ اور نواحی علاقوں میں چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں میں اضافہ، جویاں والا کے علاقے میں گاڑی نہ روکنے پر ڈاکوں نے فائرنگ کر کے تاجر کو شدید زخمی کر دیا۔ کوٹ عبد المالک میں ڈاکوں کی راہگیروں سے لوٹ مار، مزاحمت پر ڈاکوں نے موٹر سائیکل سوار محنت کش کو اندھا دھند فائرنگ کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ مقتول کی شناخت ریاض احمد کے نام سے کر لی گئی۔ سوابی میں جنرل سیکرٹری ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن صفدر زیب کے گھر ڈکیتی کی واردات، پولیس کی وردی میں ملبوس 15 نامعلوم ڈاکو گھر سے 24 تولے زیورات، 15 لاکھ روپے نقدی، موبائل فونز اور اسلحہ لے کر فرار ہو گئے۔ پولیس نے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ گھوٹکی میں شہید پولیس کانسٹیبل عبدالرزاق ملک کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں پولیس افسران سمیت اہل علاقہ نے بھرپور شرکت کی۔ مزید جانتے ہیں جاوید کھوسا کی رپورٹ میں۔ کچھ روز قبل فرائض کے ادائیگی کے دوران پولیس کانسٹیبل عبدالرزاق ملک ڈاکوؤں کے ساتھ مقابلے میں زخمی ہوئے تھے، جو کہ زخموں کے تاب نہ لاتے ہوئے حقیقی مالک سے جا ملا۔ شہید ہونے والا پولیس کانسٹیبل عبدالرزاق ملک کی نماز جنازہ عیدگاہ اوباڑوں میں ادا کی گئی۔ شہید کی مغفرت اور بلند درجات کے لیے اجتماعی دعائیں مانگی گئیں۔ ایس ایس پی گھوٹکی تنویر حسین تنیور سمیت دیگر پولیس افسران و اہلکار، صحافی حضرات، سیاسی و سماجی شخصیات نے بڑی تعداد میں شہید ہونے والے پولیس اہلکار کی نماز جنازہ میں شرکت کی۔ 23 نومبر 2022 کو تھانہ باڑے کے حدود روہتی روڈ نزد سونن مائنر کے دوران ناکہ بندی ڈاکوؤں کے فائرنگ سے زخمی ہو گیا تھا، جو کہ گزشتہ رات زخموں کے تاب نہ لاتے ہوئے رمیار خان کے اسپتال میں دم توڑ گیا۔ شہید کے جسد خاکی کو گھوٹکی پولیس کے چاق و چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ شہید کے جسد خاکی کو پاکستان و سندھ پولیس کے پرچم میں لپیٹا گیا تھا۔
SSP गोटकी का कहना था कि शहीद के लवाकिन की हर मुमकिन जायज मदद करेंगे। जिला में अमन के क्याम के लिए अपने जानों का नजराना पेश करने वाले पुलिस ऑफिसर जवान महकमा फख्र हैं। SSP गोटकी, शहीद पुलिस की कुर्बानियां कभी रायगान नहीं जाएंगी। शहीद हमेशा आवाम के दिलों में जिंदा रहेंगे और उनका नाम सुनहरी अल्फाज में लिखा और याद किया जाएगा। पुलिस के हौसले बुलंद हैं और इंशाअल्लाह मुंतकी अंजाम। मंडी बहाउद्दीन में DPO अनवर सईद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयों के बारे में मीडिया को आगाह किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने बताया कि मुख्तलिफ इलाकों में अंधे कत्ल की वारदातों और डकैती व राहसनी की वारदातों में मुलविस मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। तैयब नामी नौजवान के कत्ल में मुलविस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। पहाड़ियां वाली में अपने चचा को कत्ल करने वाले मुलजिमान को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस टीम ने 2 रुकनी मोटू पतलू गैंग को गिरफ्तार करके 30 लाख रुपए नकदी बरामद कर ली है। सादिकाबाद में थाना माजका पुलिस की बड़ी कार्रवाई। सियासी शख्सियत अहमद मुख्तार पर फायरिंग करने वाले रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम जुल्फकार माची को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम के कब्जा से नाजायज असलहा भी बरामद कर लिया गया। मुलजिम डकैती, इक़दाम कत्ल, पुलिस पर फायरिंग और संगीन नौयत के मुतादिद मुकदमात में मुलविस था। बहावलपुर में ASP डॉक्टर अजीज की SHO मोहसिन सरदार के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। थाना सिविल लाइंस पुलिस की कामयाब कार्रवाई बारे आगाह करते हुए कहा कि मनशियात फरोशी के घिनौने धंधे में मुलविस मुलजिम कामरान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुलजिम के कब्जा से 1 मन चरस और 9 किलोग्राम अफयून भी बरामद कर ली गई है। रेनाला खुर्द में SHO फरोख शहजाद भट्टी की कार्रवाई। कुबा खाना पर छापा मारकर खातीन समेत 4 मुलजिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले कि SHO फरोख शहजाद ने कहा कि जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा। कराची के इलाके औरंगी टाउन में रेंजर्स और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। डकैती की मुतअद्दिद वारदातों में मुलविस मुलजिम सैफुल्लाह को गिरफ्तार कर लिया गया। मजीद जानते हैं राजा बलोच की रिपोर्ट में। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध और पुलिस ने इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर मुश्तरका कार्रवाई करते हुए कराची के इलाके औरंगी टाउन से मुतअद्दिद डकैती की वारदातों में मुलविस मुलजिम सैफुल्लाह को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान के मुताबिक 23 अक्टूबर 2022 को मुलजिम ने अपने साथी हारून और हाशिम को साथ मिलकर बिजली नगर औरंगी टाउन में मोबाइल शॉप में डकैती की, जिसमें 22 अदद मोबाइल फोन और मोबाइल एसेसरीज के अलावा नकदी 60,000 रुपए छीन कर फरार हो गए थे। मुलजिम को डकैती करते हुए CCTV फुटेज में देखा जा सकता है। दौरान तफ्तीश मुलजिम ने अपने साथियों के हमरा डकैती की 15 से जायद वारदातों में 20 अदद मोबाइल फोन और नकदी 50,000 रुपए छीनने का एतराफ किया है, जबकि मुलजिम के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। गिरफ्तार मुलजिम को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया है। पेशावर में महकमा एक्साइज का मनशियात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। कोहाट रोड पर वाक़ई फैक्ट्री पर छापा मारकर हीरोइन और दीगर सामान बरामद कर लिया। इस हवाले से डायरेक्टर एक्साइज एंड नारकोटिक्स कंट्रोल खैबर पख्तूनख्वा ईद बादशाह ने क्या कहा, आइए जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की खुसूसी हिदायत पर सेक्रेटरी आदिल शाह साहब की सुपरविजन में मंशियात और उनके अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। आज एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट अहम कार्रवाई की है। एक्साइज इंटेलिजेंस ब्यूरो के इंचार्ज माजिद खान ने इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर कोहाट रोड पे हीरोइन बनाने वाली फैक्ट्री पे छापा मारा है। मुलजिम समेत फैक्ट्री के सामान और जो प्रिकर्सर केमिकल इस्तेमाल होते हैं हीरोइन में, उसको कब्जे में ले लिया है। मजीद तफ्तीश जारी है। मुलजिम का नाम से गैराज में रखा जा रहा है ताकि मजीद मुलजिमों को गिरफ्तार किया जा सके। लुडन में गरीब मेहनत कश SDO और सब इंजीनियर इमरान शहजाद के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। मुतासरीन का कहना है कि कब्जा माफिया के साथ मुबैना मिली भगत करके महकमा अनहार के मुलाजमीन के साजो सामान के साथ टूट पड़े। अरसा 50 साल से मामूली कारोबार करने वाले गरीबों का कारोबारी सामान तोड़ डाला। मुतासरीन ने वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। उकाड़ा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में सफाई वर्कर्स का तनख्वाहें न मिलने पर एहतजाज। अस्पताल में मर्द और खवातीन वर्कर्स अपने हक के लिए सरापा एहतजाज बन गए। सफाई वर्कर्स का कहना है कि गुज़िश्ता 3 माह से कंपनी की तरफ से हमें तनख्वाहें नहीं दी जा रही। हमारे घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं।
متعلقہ اعلیٰ افسران فوری نوٹس لیں۔ مصطفیٰ آباد کے مقامی قبرستان کی چار دیواری مکمل نہ ہونے پر علاقہ مکین سراپے احتجاج بن گئے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ چار دیواری نہ ہونے کی وجہ سے قبرستان میں جانوروں کا داخل ہونا معمول بن گیا ہے، جس کے باعث قبروں کی بے حرمتی ہو رہی ہے۔ اعلیٰ افسران فوری نوٹس لیں۔ سنجر پور میں آئے روز بڑھتی ہوئی مہنگائی نے غریب آدمی کی کمر توڑ دی۔ سبزیوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ مزید جاتے ہیں ہمارے نمائندے جام ضمیر کی رپورٹ میں۔ سنجر پور میں آئے روز بڑھتی ہوئی مہنگائی نے غریب آدمی کی کمر توڑ دی۔ اگر بات کریں سبزیوں کی تو سبزیوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، جس میں پیاز 200 روپے کلو، ہری مرچ 200 روپے کلو، ٹماٹر 200 روپے کلو میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ پنجاب بھر کی طرح سنجر پور شہر اور گرد و نواح میں بھی سبزی اور سبز مسالہ جات کی قیمتیں آسمانوں سے باتیں کرنے لگی ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اب سبزیاں بھی غریب عوام کی پہنچ سے دور ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ سبزی فروشوں اور دکانداروں کا کہنا ہے کہ سبزیاں دور دراز کے علاقوں سے آتی ہیں اور ڈیزل اور پیٹرول کی مصنوعات میں اضافے کی وجہ سے کرایوں میں بے تحاشا اضافہ ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے سبزیوں اور سبز مسالہ جات کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں۔ ہمیں بھی بہت مہنگی میسر ہیں، اس لیے شہریوں کو بھی ہم مہنگی فراہم کرنے پر مجبور ہیں۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ سبزیوں کی قیمتوں میں کمی کی جائے تاکہ شہری سستے داموں کوہاٹ میں پراپرٹی ڈیلرز نے مسائل کے حل کے لیے آل پراپرٹیز ڈیلرز ایسوسی ایشن قائم کر لی۔ الحاج شاہد محمود ٹھیکیدار ڈویژن صدر منتخب ہو گئے۔ مزید جانتے ہیں کوہاٹ سے فیضان بنوری کی اس رپورٹ میں۔ کوہاٹ پراپرٹی ڈیلرز نے محکمہ مال خیبر پختونخوا کی جانب سے صارفین کے لیے کھڑے کیے گئے مسائل کے حل کے لیے ڈویژنل سطح پر تنظیم بنا لی۔ اس موقع پر معیت ہاؤس میں ایک گرینڈ پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس میں معروف کاروباری شخصیت حاجی شاہد ٹھیکیدار کو صدر منتخب کیا، جنہوں نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے بتایا کہ ٹیکس بڑے ہوئے ہیں، ٹیکس کی وجہ سے پراپرٹی کا بیڑا غرق ہو گیا ہے اور سارا نظام درم برم ہو گیا۔ پراپرٹی کے ساتھ ہر کاروبار منسلک ہے اور سارے کاروبار اس وجہ سے رک گئے ہیں۔ یہ ٹیکس زیادہ ہوئے ہیں، ویلیویشن بڑھ گئی ہے اور اس وجہ سے حکومت کو بھی نقصان ہو رہا ہے کیونکہ انتقالات نہیں ہو رہے ہیں، اور پیچھے یہ انتقالات والا جو کمپیوٹر نظام بن گیا ہے، اس سے بھی مسائل بنے ہوئے۔ ہر آدمی کا یہ مسئلہ ہے کہ میرا زمین 10 کنال ہے اور اس میں 5 کنال کمپیوٹر پہ چڑھی اور 5 کنال کا ریکارڈ ہی نہیں ہے۔ باقی صوبوں کے برعکس کی پی حکومت نے زمینوں کی خرید و فروخت پر ناروا ٹیکس لگائے ہیں اور اسی وجہ سے پراپرٹی کا کاروبار بالکل ٹھپ ہو کر رہ گیا ہے۔ پورے پاکستان میں 2% ٹیکس ہے یا 1% ٹیکس ہے، لیکن ہمارے کوہاٹ میں کی پی میں 15% ٹیکس لاگو ہے۔ تیسری بات 30,000 کی ہم ایک ربع فی مرہ خریدتے ہیں، لیکن اس پہ ٹیکس جو ہے 2,35,000 کے حساب سے ہم ٹیکس دیتے ہیں۔ کیوں؟ صوبہ خیبر پختونخوا حکومت نے زمینوں کے انتقالات پر ناقابل برداشت ٹیکسز لگا کر پراپرٹی ڈیلرز کو چیخنے پر مجبور کر دیا ہے، جس کے لیے متحد ہو کر عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ ساتھی رپورٹر سیالکوٹ میں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ پشاور کی زیر نگرانی 35ویں کامن مڈ کیریئر مینجمنٹ کورس کے زیر تربیت افسران کے وفد کا ڈی سی آفس کا دورہ۔ ڈپٹی کمشنر عبداللہ خرم نیازی نے مڈ کیریئر مینجمنٹ کورس میں شامل افسران کو ڈسٹرکٹ پروفائل پر تفصیلی بریفنگ دی۔ انہوں نے کہا کہ صنعتی مرکز سیالکوٹ سے گزشتہ سال $4 ارب کی برآمدات ہوئیں۔ نجی شعبہ کے زیر انتظام ایئرپورٹ، ایئر لائن اور ڈرائی پورٹ کے پروجیکٹ مثالی طریقہ سے چلائے جا رہے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ عبداللہ خرم نیازی نے کہا کہ رواں سال 4,72,000 ایکڑ رقبہ پر گندم کی کاشت کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ حکومت پنجاب نے ضلع میں 52 ارب روپے کی لاگت سے 118 ترقیاتی منصوبے شامل کیے ہیں۔ راولپنڈی گرجا روڈ پر واقع غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی کے خلاف آر ڈی اے نے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ بہت جلد غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی کے خلاف ریفرنس بنا کر ایف آئی اے کو بھیجا جائے گا۔ مزید جانتے ہیں راولپنڈی سے عمیر احمد کی رپورٹ میں۔ راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی آر ڈی اے کے زیر انتظام گرجا روڈ پر واقع غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی میاں محمد بخش سٹی مالکان کے خلاف آر ڈی اے حکام نے شکنجہ تیار کر لیا ہے۔ آر ڈی اے حکام کا کہنا ہے کہ غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی سادہ و معصوم شہریوں کو سستے پلاٹوں کا جھانسا دے کر دونوں ہاتھوں سے لوٹنے میں مصروف ہیں۔ ایسے نوسربازوں کے حوالے سے باقاعدہ اخبار اشتہار کے ذریعے لوگوں کو متنبہ بھی کیا گیا، تاہم اس کے باوجود اگر کوئی غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی انتظامیہ سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کر رہی
ہے تو ان کے خلاف RDA حکام زیرو ٹالرنس اختیار کیے ہوئے ہے۔ RDA حکام کا کہنا ہے کہ میاں محمد بخش سٹی مکمل طور پر غیر قانونی ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے۔ مذکورہ غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی مالکان کے پاس RDA کا NOC یا کوئی اجازت نامہ موجود نہیں۔ عوام الناس سمیت انویسٹروں اور ڈیلرز حضرات کو بھی چاہیے کہ وہ اس قسم کی غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز میں کوئی سرمایہ کاری نہ کریں تاکہ لوگوں کی انویسٹمنٹ محفوظ رہ سکے۔ کیمرامین عمر سلیم کے ساتھ عمیر احمد۔ لاہور میں 35ویں مڈ کیریئر مینجمنٹ کورس نیشنل انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ اسلام آباد اور پشاور کے شرکاء کا سول سیکریٹریٹ کا دورہ، چیف سیکرٹری عبداللہ خان سنبل سے ملاقات کی۔ وفد کو پنجاب میں جاری ترقیاتی منصوبوں اور ای گورننس پر بریفنگ دی گئی۔ چیف سیکرٹری عبداللہ خان سنبل نے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ معاشی اہداف کے حصول کے لیے پنجاب گروتھ اسٹریٹجی پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ معیشت اور تعلیم کے شعبے کا باہمی ربط ہے، اس اہم شعبے کے لیے زیادہ سے زیادہ فنڈ مختص کرنے کی ضرورت ہے۔ صوبہ پنجاب میں گزشتہ 2 دہائیوں میں صحت کے شعبے میں واضح بہتری آئی، عوامی مفاد میں تعلیم، صحت، زراعت اور دیگر شعبوں میں اصلاحات کا عمل جاری ہے۔ انہوں نے ملاقات کرنے والے افسران کو ہدایت کی کہ وہ سرکاری افسران کے طور پر اپنے فرائض، محنت، دیانتداری اور عوامی خدمت کے جذبے سے سرشار ہو کر سر انجام دیں۔ بہاولپور میں ڈپٹی ڈائریکٹر زرعی اطلاعات پنجاب نوید عصمت کاہلو نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ محکمہ زراعت حکومت پنجاب کے تحت فصلوں کی بیمہ کے لیے رجسٹریشن کا عمل جاری ہے۔ ناگہانی آفات سے پیداوار میں نقصان کے ازالے کے لیے کسان دوست اقدامات متعارف کروائے گئے ہیں۔ مزید جانتے ہیں فضل جاوید خان کی رپورٹ میں۔ نوید عصمت کالو ڈپٹی ڈائریکٹر زرعی اطلاعات پنجاب نے کہا کہ فصل بیمہ تکفل پروگرام کے تحت اب تک 14,82,970 کاشتکار اسودہ حاصل کر چکے ہیں، جن کی فصلات کے بیمہ کا پریمیر حکومت پنجاب کی طرف سے ادا کیا گیا ہے۔ اب رجب کی فصلات کے بیمہ تکفل کے لیے کاشتکاروں کی رجسٹریشن کی جا رہی ہے۔ فصل بیمہ تکفل پروگرام کے تحت ربیع 2022-23 قریب 2023 کے لیے صوبہ پنجاب کے 27 ضلع میں گندم، کنولا، سیورج مکی، کپاس اور دھان کے کاشتکاروں کو موسمیاتی تبدیلیوں کا قدرتی آفات اور ٹڈی دل کے حملے کے نقصان کے ازالے کے لیے بیمہ پروگرام کے تحت رجسٹریشن کا عمل جاری ہے۔ اس پروگرام میں شیخوپورہ، سہیوال، لودرا، رحیمر خان، فیصل آباد، ملتان، مظفر گڑھ، ناروال، راجن پور، بکھر، ڈی جی خان، قصور، خانیوال، لیا، منڈی، بہاؤدین، بھاون نگر، بہاولپور، اکاڑا، وہاڑی، کشاف، جنگ، چنوٹ، پاک پتن، ٹوپا ٹریک سنگھ، سرگودا، میاں والی اور حافظ آباد کے ضلع شامل ہیں۔ نوید عصمت کالو ڈپٹی ڈائریکٹر زرعی اطلاعات پنجاب نے کوہ نور سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے بتایا، محکمہ زراعت حکومت پنجاب کے تحت فصلوں کے بیمہ پروگرام پر عمل درآمد جاری ہے۔ 5 ایکڑ تک اراضی کے مالک کاشتکاروں کے لیے بیمہ کے پریمیم پر 100% سبسڈی دی جا رہی ہے۔ 5 سے 25 ایکڑ تک اراضی کے کاشتکاروں کے لیے بیمہ کے پریمیم پر 50% سبسڈی دی جا رہی ہے۔ 2022-23 میں گندم، سورج مکھی اور کینولا کی فصلات کا بیمہ کیا جا رہا ہے اور 2023 میں کپاس اور دھان کی فصل کا بیمہ کیا جائے گا۔ فصلات کے بیمہ پروگرام کرانے والے کاشتکاروں کو پالیسی سرٹیفکیٹ جاری کیے جائیں گے۔ نقصان کی صورت میں انشورنس کمپنی جو ہے وہ تمام بیمہ شدہ کاشتکاروں کو ان کے نقصان کا ازالہ کرے گی، ازالہ کرنے کی پابند ہوگی، اور اس کے علاوہ شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے آن لائن سسٹم بھی متعارف کرایا گیا ہے۔ واپس آتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ خانقاہ ڈوگرہ میں پہلے ویمن ہیلتھ کلینک کا افتتاح کر دیا گیا۔ افتتاح ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر محمد اعجاز کھوسا اور سینئر ڈاکٹر شہباز اختر نے شہریوں کے ہمراہ کیا۔ مزید جانتے ہیں ماہر سرفراز کی رپورٹ میں۔ خانقاہ ڈوگرہ میں ماڈل رورل ہیلتھ سینٹر کے سینئر ڈاکٹر حسن اور ان کی اہلیہ سینئر لیڈی ڈاکٹر نور النساء نے شہر میں پہلا لیڈی ہیلتھ کلینک کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے۔ کلینک کا افتتاح ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر محمد اعجاز کھوسا اور سابق SMO ڈاکٹر شہباز اختر نے شہریوں کے ہمراہ کیا ہے۔ اس موقع پر جنرل سیکرٹری مرکز انجمن تاجران مظہر اقبال شرازی، چیئرمین مدثر علی بٹی، صدر کیمسٹ ایسوسی ایشن رانا سکندر اور میڈیکل سٹور مالکان کے علاوہ شہریوں کی
की बड़ी तादाद ने शिरकत की। क्लिनिक में लेडी डॉक्टर नूरुन्निसा खवातीन का शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक चेकअप करेंगी, जबकि अल्ट्रासाउंड, बांझपन और गायनी के अलावा खवातीन के दीगर हेल्थ मसाइल का इलाज भी किया जाएगा। शहरियों ने इस क्लिनिक को इलाके भर के लिए खुश आइंद करार दिया है। तकरीब के मेहमान खुसूसी साहबजादा जियाल मुस्तफा थे। तकरीब के इख्तिताम पर दुआ और मेहमानों की तवाज़ो भी की गई। कैमरामैन मोहम्मद अजमल शाहिद के साथ मार सरफराज, कोहिनूर न्यूज़। टंडो जाम में जिल्द के अमराज के इलाज के लिए मुफ्त तिबी कैंप लगाया गया, जिसमें डॉक्टर अंबर तालपुर ने मरीजों का मुआयना किया और मुफ्त अद्वियात दी। मजीद जानते हैं जुनेद अली भट्टी की रिपोर्ट में। अल खिदमत मेडिकल सेंटर टंडो जाम में जल्द के अमराज का एक रोजा मुफ्त तिब्बी कैंप लगाया गया, जिसमें जल्द के मारूफ डॉक्टर अंबर तालपुर ने मरीजों का मुआयना किया और मुफ्त अद्वियात दी। इस मौके पर डॉक्टर अंबर तालपुर का कहना था कि मौसम की तब्दीली, रात में सर्दी और दिन में गर्मी की शिद्दत की वजह से खवातीन में जल्दी अमराज तेजी से फैल रहे हैं। उन्होंने कहा कि खवातीन में बालों में खुश्की, एलर्जी, जल्दी खारिश, चेहरों और हाथों में खुश्की, एक्जिमा तेजी से फैल रही है। उन्होंने कहा कि खवातीन को चाहिए कि वो अपना साबुन और तौलिया अलग रखें, सर को मेडिकल शैम्पू और नहाने से पहले तेल का इस्तेमाल करें, चेहरों पर लोशन लगाएं। इस मौके पर जमात इस्लामी टंडो जाम के अमीर अब्दुल हमीद शेख, अल खिदमत फाउंडेशन टंडो जाम के सदर राव ताहिर, जनरल सेक्रेटरी ताहिर उसामा ने कहा कि जल्द अमराज के इस कैंप में 700 से जायद मरीजों का मुआयना और मुफ्त अद्वियात दी गई है। उन्होंने कहा कि अल खिदमत फाउंडेशन टंडो जाम मुसलसल आवाम को सस्ती और मयारी इलाज की सहूलत फराम कर रही है। उन्होंने कहा कि इससे कबल कोरोना, सैलाब, बारिशों में आवाम को राशन, खाना, कपड़े। खैरपुर नातन शाह सिविल कोर्ट में बार ऑफिस की इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें जज साहिबान और वकला बिरादरी ने कसीर तादाद में शिरकत की। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद असलम शेख की रिपोर्ट में। खैरपुर नाथन शाह में तालका बार एसोसिएशन की जानिब से सिविल कोर्ट के इंशा में एनुअल डिनर और तालका बार एसोसिएशन ऑफिस की इफ्तिताही तकरीब मुनक्कद की गई। तकरीब में जिला दादू के जज साहबान के साथ पूरे जिले के वकला बिरादरी ने अक्सरियत से शिरकत की। तकरीब की निगरानी तालका बार एसोसिएशन के इंशा सदर एडवोकेट जफर अली बुग्यो, एडवोकेट शोबान मला, एहसान सियाल, रशीद वेंस और एडवोकेट मोहम्मद शरीफ एवान और दीगरों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 2022 के सैलाब में सिविल कोर्ट के इंशा की बिल्डिंग जबून हाल का शिकार हो गई है। मुसलसल बारिशों की वजह से सिविल कोर्ट की छतें भी कमजोर हो गई हैं। सिविल कोर्ट के इंशा की तामीरात का काम जल्द करवा दिया जाए। तकरीब के मेहमान खास सेशन जज दादू मोहम्मद मुराद मेमन, सेशन जज मॉडल कोर्ट दादू बदरुद्दीन काजी साहब और दीगरों को तालका बार एसोसिएशन के इंशा की जानिब से सिंध की सकाफत, पगड़ी, टोपी, अजरक के तोहफे पेश किए गए। तकरीब के मेहमान खास ने तालका बार एसोसिएशन के इंशा ऑफिस का इफ्तिताह किया और पौधे लगाए। पतौकी में पंजाब टीचर्स यूनियन और कॉलेज के ज़ेर एहतमाम टीचर्स को खराज तहसीन पेश करने के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें महकमा एजुकेशन के अफसरान समेत असातिज़ा इकराम ने भरपूर शिरकत की। पुरवकार तकरीब में सैफुर रहमान सैफ ने बतौर मेहमान ख़ुसूस शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुअल्लिम प्रोग्राम का बुनियादी मकसद असातिज़ा की बेहतरीन खिदमात पर उन्हें खराज तहसीन पेश करना है। उमरकोट की तहसील कुंडरी में सिंध ज़रई यूनिवर्सिटी उमरकोट कैंपस में दाखिले के हवाले से बेदारी मुहिम के सिलसिला में तकरीब मुनक्किद हुई। प्रोफेसर जान मोहम्मद मरी और साबिक चेयरमैन कुंडरी हाजी शकील अहमद बाजवा ने कैंपस पॉइंट बस का भी इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए प्रोफेसर जान मोहम्मद मरी ने कहा कि एग्रीकल्चर कैंपस उमरकोट थरपारकर और उमरकोट के तलबा और तालिबात और उनके वालिदैन के लिए चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और सिंध हुकूमत का अनमोल तोहफा है। उन्होंने कहा कि पब्लिक स्कूल उमरकोट में तलबा और तालिबात के लिए कायम हॉस्टल की तामीर और मुरम्मत का काम जारी है, जो कि जनवरी में मुकम्मल हो जाएगा। चूनिया के गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें शायर जफर इकबाल की किताब नुक्ते विद जहां की रोनुमाई की गई। तकरीब में पंजाबी शोहरा और प्रोफेसरान ने अपने मकाराजात पढ़े और पंजाबी शायर जफर इकबाल की किताब नुक्ते विद जहां को पंजाबी अदब में एक खूबसूरत इजाफा करार दे दिया। शाहकोट के नवाही गांव वंटियावाली में फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसमें गरीब मुस्तहिक लोगों को फ्री तिबी सहूलियात फराहम की गई। मजीद जानते हैं मियां बिलाल की रिपोर्ट में।
यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के टीचिंग हस्पताल के तलबा की जानब से शाहकोट के नवाही गांव मनोटिया वाली में एक रोजा फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसमें शोबा तिब्बी से तलक रखने वाले 22 के करीब डॉक्टर मौजूद थे, जिनमें जोड़ों के दर्द, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, मैदा और जिगर के माहिर डॉक्टर्स और शुगर जैसी मूजी अमराज के माहिरीन डॉक्टर्स मौजूद थे। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह 300 से ज्यादा मरीजों का अब तक मुआयना किया जा चुका है, जिसमें मर्द, खवातीन, बच्चे अपने मुख्तलिफ मसाइल के साथ तशरीफ लाए और उनको यहाँ मुफ्त अद्वियात और मशवरा दिया गया। एक रोजा फ्री मेडिकल कैंप में अहले गांव और गिरदो नवा से आए हुए मर्द, खवातीन और बच्चों का फ्री चेकअप किया गया। कि हमने यहाँ के लोगों को एक तो जो छोटे बच्चे हैं उनको हैंड हाइजीन के बारे में बताया, ताकि जो फीको ओरल रूट के हमारे जितने भी वायरसेस हैं उनको हम मैक्सिमम तौर पे बचा सकें, ठीक है। और उसके अलावा जहाँ के रहने वाले थे, अब यहाँ पे एक अंडर डेवलप एरियाज है, इन लोगों के लिए हमने क्या किया, एक फ्री मेडिकल कैंप किया था, ताकि लोगों को आसानी से जो है ये फैसिलिटीज अवॉइड, हम डॉक्टर्स जो है उनकी टीम एक आकर चेक कर ली जाए। इस महंगाई और बेरोजगारी के दौर में जहां गरीब अवाम के लिए महंगी अदवायात खरीदना तो ख्वाब बन गया है, वहां पर ही किसी अच्छे और स्पेशलिस्ट डॉक्टर को चेक करो। कराची में इलेक्शन कमीशन मलीर की जानिब से वोटरों के कौमी दिन पर वोट की अहमियत के ज़ेर उन्वान वाक की गई, जिसके बाद सेमिनार का भी इनेकाद किया गया, जिसमें ख़वातीन के वोट के दाखिला और वोट देने के मुतालिक आगाही दी गई। देखते हैं कराची से राजा बलोच की रिपोर्ट। इलेक्शन कमीशन मलीर की जानब से वोटरों के कौमी दिन पर वोट की अहमियत के ज़ेर उन्वान वाक की गई, जिसके बाद सेमिनार मुनक्कद हुई, जिसमें खवातीन के वोट की दाखिला और वोट देने के मुतालिक आगाही दी गई। सेमिनार में डिप्टी कमिश्नर मलीर इरफान सलाम मीरवानी, SSP मलीर सईद इरफान बहादुर, जिले इलेक्शन कमिश्नर रोशन मस्तोई, महकमा तालीम के सिराज मेमन समेत सिविल सोसाइटी व सियासी समाजी रहनुमाओं ने शिरकत की। सेमिनार से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर मलीर इरफान सलाम मीरवानी ने कहा कि मुल्क भर की तरह आज मलीर में वोटर्स डे मना रहे हैं। वोट कास्ट करना अहम जिम्मेदारी है और इसके लिए आगाही भी लाजमी है। शहरियों को वोट की अहमियत से मुतल्लिक बताना लाजमी है। इनका कहना था कि गुज़श्ता ज़मीनी इंतखाबात में 18% कास्टिंग रेशो रहा, जो बहुत कम था, इसलिए आवाम को वोट की अहमियत जानना लाजमी है। सियासतदानों को बुरा भला कहने से पहले हमें अपने वोट का हक सही इस्तेमाल करना चाहिए। इस मौके पर SSP मलीर सईद इरफान बहादुर का कहना था कि आज का दिन इंतहाई अहमियत का हामिल है। वोट देना कौमी फरीजा है। वोट डालने से माशरे में बेहतरी आती है। वोट कास्ट करेंगे तो अपने पसंद के नुमाइंदे मुंतखब कर सकते हैं। आने वाले बल्दियाती इंतखाबात में मलीर पुलिस इलेक्शन कमीशन के साथ हर वक्त मौजूद रहेगी। इस मौके पर जिले इलेक्शन कमिश्नर मलीर ने अवाम से गुजारिश की कि इलेक्शन के दिन घरों में ना बैठे वोट डालें। पोलिंग के दिन हर खवातीन मर्द वोट का इस्तेमाल करे, ये आगाही देने की भी जरूरत है। 15 जनवरी को होने वाले ठहरी मीरवाह के मकामी स्कूल में सिंधी सकाफती दिन के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें असातिज़ा, तलबा और तालिबात, वालिदैन ने भरपूर शिरकत की। तलबा ने टैबलोज पेश किए और सकाफती गीतों पर रक्स किया। नारंग मंडी में महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम किया गया, जिसकी सदारत सैयद अली अब्बास हुसैनी ने की। मजीद जानते हैं कमर गुलाटी की रिपोर्ट में। पीर ऑफ चूरा शरीफ सैयद अली अब्बास हुसैनी की नारमंडी आमद पर शानदार इस्तकबाल किया गया। महल्ला फिरोजाबाद में मुरीद खास हमीद अहमद की रहायशगाह पर फ़कीरुल मिसाल महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद हुआ, जिसमें अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। महफिल पाक रात गह तक जारी रही। मजीद जानते हैं पीर साहब की तकरीर का कुछ हिस्सा। बख्शीन वास्ते मेहनत हो रही, इबादत किस वास्ते? अजाब तो बच जाएगी, सवाब बच जाएगी। रोजे आज ज़कात जो भी कर रहे हैं भाई, रोजे तो बच जाएगी और जन्नत टोटली लुबाब सारे इस्लाम का ये है। अल्लाह दी नफरत तो बच जाइए, अल्लाह दी मोहब्बत मिल जाए। दिन क़यामत होएगा, तमाम अंबिया सब बन के खड़ोते हो, तमाम औलिया सब बन के खड़ोते हो। अचानक मुरादी बोलेगा, गुद्दू अब सारा वो नकेसू रहू सको हत्ता इजाफा हो गया। मछली फरोशों की दुकानों पर शहरियों का रश लग गया। मजीद जानते हैं जाफर अली की रिपोर्ट में। जी, हम मछली पॉइंट पे खड़े हैं। हम अपनी फैमिली के साथ मछली खाने आए हैं। जैसे ही सर्दियां आई हैं
काफ़ी तादाद में लोगों का इधर रुझान है। मछली सेहत के लिए भी बहुत फ़ायदा मंद है, इसमें विटामिन सी की वाफिर मिकदार होती है, कैल्शियम पाया जाता है। ये दिल के मरीज़ों के लिए बहुत फ़ायदा मंद है। ये बच्चे बड़े बुजुर्ग इसको शौक़ से खाते हैं, ये उनके लिए सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, अच्छी है, हम सबको मिल के खानी चाहिए। ये सेहत के लिए फ़ायदा मंद है। सर्दियों में ये तो लाजवाब तोहफ़ा है। इनकी जितनी भी इकसाम है ये सजावल की मछली मार्केट खंडरात में तब्दील हो गई। लाख रुपए खर्च होने के बावजूद भी जिला इंतजामिया मछली मार्केट को फाल कराने में नाकाम, जिसकी बड़ी वजह मछली और सब्जी फरोख्त करने वालों ने रोड के दोनों अतराफ डेरे लगा लिए हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होना मामूल बन गया। आपको हम अपडेट कर रहे हैं कि सजावल की मछली मार्केट खंडरात में तब्दील हो गई। लाख रुपए खर्च होने के बावजूद भी जिला इंतजामिया मछली मार्केट को फाल कराने में नाकाम, जिसकी वजह से मछली और सब्जी फरोख्त करने वालों ने रोड के दोनों अतराफ डेरे लगा लिए, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होना मामूल बन गई है। आपको हम अपडेट कर रहे हैं कि सजावल की मछली मार्केट खंडरात में तब्दील हो गई। लाखों रुपए खर्च होने के बावजूद भी जिला इंतजामिया मछली मार्केट को फाल कराने में नाकाम, जिसकी वजह से मछली और सब्जी फरोख्त करने वालों ने रोड के दोनों अतराफ डेरे लगा लिए, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होना मामूल बन गया। वापस आते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताएं कि चेयरमैन एनवायरनमेंट एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट टास्क फोर्स तंजीला इमरान का अहम इकदाम फैसल फयाज खोखर को मीडिया एडवाइजर पंजाब मुकर्रर कर दिया गया। इस हवाले से फैसल फयाज खोखर ने तंजीला इमरान और वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इमरान खान और वजीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक काम जारी रखूंगा। उनका मजीद कहना था कि शहबाज हुकूमत मुल्क संभालने में मुकम्मल नाकाम साबित हुई। मुल्की मसाइल का वाहिद हल फौरी शफाफ इंतखाबात हैं। आपको एक बार फिर अपडेट करते चलें कि चेयरमैन एनवायरनमेंट एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट टास्क फोर्स तंजीला इमरान का अहम इकदाम फैसल फयाज खोखर को मीडिया एडवाइजर पंजाब मुकर्रर कर दिया गया। इस हवाले से फैसल फयाज खोखर ने तंजीला इमरान खान और वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इमरान खान और वजीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक काम जारी रखूंगा। उनका मजीद कहना था कि शहबाज हुकूमत मुल्क संभालने में मुकम्मल नाकाम साबित हुई। मुल्की मसाइल का वाहिद हल फौरी शफाफ इंतखाबात हैं। प्रोजेक्ट डायरेक्टर पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम डॉक्टर मोहम्मद फारूक अहमद का एड्स क्लिनिक जिना अस्पताल लाहौर का दौरा। क्लिनिक पर मरीजों को फराहम की जाने वाली सहूलियात का तफसीली जायजा लिया। इस मौके पर डॉक्टर फारूक का कहना था कि जिना अस्पताल का एड्स क्लिनिक हमारे बेहतरीन क्लिनिक्स में से एक है। डॉक्टर फारूक ने क्लिनिक के अमला की हौसला अफजाई की और खिदमात को मजीद बेहतर बनाने की हिदायत जारी की। उन्होंने कहा कि क्लिनिक 1/3 से इस बीमारी में मुब्तला अफराद को मुफ्त तशखीस, इलाज और अद्वियात फराहम कर रहा है। हम पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के साथ ताउन को मजीद बढ़ाएंगे। अल हमरा हार लाहौर में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने खसूसी शिरकत की। मजीद जानते हैं खुरम शहजाद की रिपोर्ट में। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में 9 दिसंबर को इस्नाद बदउनवानी का आलमी दिन मनाया जाता है, जिसका मकसद मुआशरे पर करप्शन के बुरे असरात और उनके बारे में आगाही पैदा करना है। इस ज़मन में पहला वर्ल्ड एंटी करप्शन डे 9 दिसंबर 2004 को मेक्सिको में मनाया गया, जो कि अब हर साल करप्शन के खिलाफ जंग के अज़म के असोज नो तजदीद के साथ दुनिया भर में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद आलमी मुआशरे को करप्शन से पाक करने के अज़म को फरोग देने के साथ साथ ऐसे इकदाम भी उठाना है जिससे करप्शन की मुकम्मल रोकथाम हो सके। इस सिलसिले में नैब के तहत अलहमरा हाल में तकरीब मुनक्कद हुई, जिसके मेहमान खुसूसी गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान थे, जबकि दीगर मेहमानों में DG नैब अली सरफराज हुसैन, तस्नीम नूरानी, सैयद नदीम अख्तर, प्रोफेसर डॉक्टर कमल आमीन, VC होम इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी और दीगर फुक़हा शामिल थे। तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान का कहना था कि एक सेहतमंद मुआशरे की इस्लाह के लिए हमें सबसे पहले अपनी ज़ात की इस्लाह करनी होगी। हमें किसी के हाथ का हथियार नहीं बनना। अंदरूनी ताकतें हमारे इस्तेमाल करके हमारे हाथों मुल्क की साख को नुकसान पहुंचा रही हैं। DG नैब अली सरफराज हुसैन का कहना था कि इस वक्त हमने कानून और मुआशरे की पासदारी ना की तो हम
इस दुनिया में तो क्या आखिरत में भी रब को मुंह ना दिखा सकेंगे। तकरीब के इख्तिताम पर गवर्नर पंजाब डीजी नैब के जानब से अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले स्टाफ को तालिब इल्मों में शील्ड और सर्टिफिकेट तकसीम किए। इस मौका पर गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुल रहमान और डीजी नैब का कोहे नूर से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहना था, जो आज उन्होंने नैब लाहौर ने प्रोग्राम बनाया है तो इसमें उन्होंने स्कूल के बच्चों को इन्वॉल्व किया है और उन्होंने वहाँ पर डिक्लेमेशन कॉन्टेस्ट वगैरह कराए हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा मैं समझता हूँ कि इनिशिएटिव है, क्योंकि इस किस्म की तरबियत जो है करप्शन के खिलाफ वो तो हमारी जनरेशन है, अब उसी को आगे आना है। जो वक्त गुजर गया वो तो गुजर गया। जी हाँ। तो अगर ये जहन जो है उस वक्त सबसे ज़्यादा फॉर्मेटिव है, सबसे ज़्यादा जो चीज़ जहन नशीन होती है वो ज़माने में होती है, तो ये अच्छा इनिशिएटिव है। ये बाहर पोस्टर लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। बच्चों को जो आपकी अगली पौध है उसको समझाएं। डिविजनल पब्लिक स्कूल व कॉलेज रावलपिंडी में स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन साकिब बनान की बतौर मेहमान खसूसी फेस्टिवल में शिरकत। तलबा ने मार्च पास, मिली नगमा, जिमनास्टिक, फायरिंग शो, पीटी शो और एरोबिक्स के बेहतरीन मुजाहरे पेश किए। कमिश्नर रावलपिंडी ने मुकाबलों में पोजीशन लेने वाले तलबा और मुंतजिमीन में ट्रॉफियां और शील्ड तकसीम की। एसपी इन्वेस्टिगेशन मुजीबुर रहमान ने कहा है कि हरिपुर में निजी तालीमी इदारों के अंदर तलबा को खेलों की सरगर्मियों की तरफ राग़िब करना पुरफतन दौर में जरूरत बन चुका है। दीगर तालीमी इदारों को भी बच्चों की ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा के लिए इस किस्म की सरगर्मियां शुरू करनी चाहिए। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने दी एजुकेटेड लर्निंग स्कूल सिस्टम की सालाना तकरीब तकसीम इनामात के मौका पर मीडिया से बातचीत करते हुए किया। ऐसे पॉजिटिव एक्टिविटीज़ अगर हों, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जिसमें बच्चे खेले कूदें, उनकी जिस्मानी नशोनुमा भी हो, जहनी नशोनुमा भी हो, उनकी हौसला अफजाई भी होती रहे, तो मैं समझता हूँ कि मैडम शाजिया जदून की तरह दीगर जो अगर गवर्नमेंट के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं या प्राइवेट हैं, उन सबको इसकी पैरवी करनी चाहिए, बच्चों को इस तरफ राग़िब करना चाहिए। मैं अपने न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।